Namaskar everyone. Welcome to the second class of economics. So in our last class we discussed about what is law of demand, what is the concept of demand, and we also discussed that what is macroeconomy and what is microeconomy. And we also discussed about the global scenario during the COVID era, how the market fell from its highs of around 12,430 and it came down to 7,500, and how then it recovered from its lows. So in this class we are going to discuss about the concepts of demand. So if you don't have any idea about what demand is, then I would request you to go and check the last video on our channel. You will have a good idea, you will gain a good knowledge about what demand is, what micro and macro economy is. So let us start with this class. So in the last class we discussed quantity demanded of product X. Here we took the example of thumbs up is equal to function of price of thumbs up, your income, and price of its other competitive goods. Price of Y product means price of any other good. Here we took an example of Pepsi, which is a close substitute of thumbs up. Now let us discuss the concepts of demand. Often economists use simple linear equations to approximate real world demand and supply functions in relevant ranges. Equation 2 illustrates a hypothetical example of our function for gasoline demand. Gasoline मतलब पेट्रोलियम का डिमांड. So quantity demanded of gasoline is equal to 84.5 minus 6.39 price of X plus 0.25 income minus 2 price of Y. Now what all these things are, we will get into the detail of it. So where you guys just look at this function for now. Just look at this function now and let us try to understand that what does it mean by X, what denotes this 84.5, what is this 6.39 px plus what is 0.25 I minus what is 2py. So here we can see where the quantity of gasoline demanded is q dx. So x means here it is gasoline. Quantity demanded of gasoline is a function of the price of a liter of gasoline py. So it means the quantity of gasoline demanded q dx is a function of the price of a liter of gasoline px. The quantity of gasoline demanded q dx ये फंक्शन है किसका, ऑफ प्राइस ऑफ अ लीटर ऑफ गैसोलीन. ये है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गैसोलीन. ये किस पर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है पी एक्स पर, मतलब उसी गैसोलीन प्रोडक्ट के दाम के ऊपर. कंज्यूमर्स इनकम इन थाउजेंड्स. सो ये कंज्यूमर का इनकम है आई एंड द एवरेज प्राइस ऑफ एन ऑटोमोबाइल, ये है आपका ऑटोमोबाइल का प्राइस पी वाई. इसको और अच्छे से समझते हैं. सो द साइंस ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑन गैसोलीन प्राइस नेगेटिव. तो
गैसोलीन का प्राइस जो है, देखिए P(x) है गैसोलीन का प्राइस, इसको यहाँ पे नेगेटिव में लिया गया है, एंड कंज्यूमर्स इनकम इन पॉजिटिव, कंज्यूमर का इनकम पॉजिटिव में लिया गया है, रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन दोज वेरिएबल्स। मतलब कि अगर आपका इनकम बढ़ता है, सो व्हाट विल हैपन, यू विल buy more of gasoline, but if the price of gasoline increases, then your demand for gasoline will be less. So this is what it signifies. So let us go more in depth with this. The signs of coefficients on gasoline price and consumers income पॉजिटिव रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन दोज वेरिएबल्स, इसी को मैंने भी समझाया, एंड द क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन कंज्यूम्ड मीन्स दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस. द नेगेटिव साइन ऑन एवरेज ऑटोमोबाइल प्राइस इंडिकेट्स दैट इफ ऑटोमोबाइल go up in price, fewer will likely be purchased and driven. So अगर गाड़ी का दाम बढ़ जाता है तो गाड़ी का डिमांड कम हो सकता है. Hence, less gasoline will be consumed. तो गैसोलीन का डिमांड कम हो जाएगा. As discussed later, such a relationship would indicate that gasoline and automobiles have a negative cross price elasticity of demand and are thus complements. इसका मतलब समझते हैं. अगर गैसोलीन का प्राइस बढ़ जाएगा, जैसे कि अभी आपका कैलेंडर ईयर 2022 में 2 के फरवरी में है, तो अगर आप कोई बाइक खरीदना है आपको, अगर आपको कोई गाड़ी लेना है, अभी आप किस बारे में सोचोगे? एक तो है गाड़ी का प्राइस, और एक आप दूसरा सोचोगे कि भाई पेट्रोल इतना महंगा है, अभी गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी चलाएंगे तो उसमें तो ज़्यादा खर्चा आएगा, ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा. इससे बेहतर क्या करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. आपके पास ऑलरेडी बाइक है, आप एक 4 व्हीलर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, बट आप ये सोच के थम जाएंगे कि भाई ठीक है, आपका एक 4 व्हीलर गाड़ी में 4 जन तो जा सकते हैं और बाइक में 2 जन, तो उस हिसाब से ठीक ही है. बट गाड़ी का भी प्राइस मैटर करता है, एंड पेट्रोल का प्राइस अभी इतना महंगा है, तो गाड़ी खरीदने से पहले आप थोड़ा सा तो सोचोगे कि भाई पेट्रोल इतना महंगा है, अभी गाड़ी खरीदना सही होगा क्या? क्योंकि चलाएंगे तो उसमें तो पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा आएगा ही, तो बेहतर होगा कि शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर ले. यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है इस टोटल पैराग्राफ में. एंड यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, जस्ट लुक एट इट, or indicate that the gasoline and automobiles have a negative cross price elasticity. क्या लिखा है इसको अच्छे से समझिए. As discussed later, such a relationship would indicate that gasoline and automobile have a negative cross price elasticity of demand. What is this negative cross price elasticity of demand? That means अगर आपका गैसोलीन का प्राइस बढ़ेगा तो गाड़ी का सेल्स घटेगा, और अगर गाड़ी का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप गाड़ी क्या खरीद पाओगे? नहीं, महंगा हो जाएगा. तो उससे क्या होगा कि गैसोलीन का डिमांड कम हो जाएगा. राइट. ये गाड़ी खरीदने के साथ पेट्रोलियम का रिलेशनशिप है कि अगर पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा चल रहा है तो आप गाड़ी खरीदने से पहले थोड़ा सा सोचोगे, और अगर पेट्रोल का दाम सस्ता भी चल रहा है बट गाड़ी का प्राइस बढ़ गया है तो आप गाड़ी खरीदने के बारे में सोचोगे. इसके वजह से आपका पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड आर दस कॉम्प्लीमेंट्स. अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि दोनों को एक साथ साथ चलना होता है. इसका मतलब यह है कि ब्रेड एंड बटर हो गया, ठीक है, नमक और खाना हो गया, चलिए वो नेसेसिटी है, बट हाँ गाड़ी एंड पेट्रोल ये कॉम्प्लीमेंट है. मतलब पेट्रोल के बिना आप गाड़ी चला नहीं सकते, एंड गाड़ी के बिना आप पेट्रोल लेके करोगे क्या? तो यह है कि एक का कंजम्पशन दूसरे के कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है. आपका पेट्रोलियम का कंजम्पशन डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर, गाड़ी का परचेज डिपेंड करता है पेट्रोलियम प्राइस के ऊपर. तो इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट, एंड ये दोनों को एक ही साथ आपको यूज़ करना होता है. इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. टू कंटिन्यू आवर एग्जाम्पल,
suppose that the price of gasoline is 1.48 per liter, per household income is 50,000, and the price of the average automobile is 20,000. In this case, this function would predict that the per household monthly demand for gasoline would be 47.54 liters, calculated as follows. तो इस सिंपल इक्वेशन को, ये एक हाइपोथेटिकल एक सिंपल इक्वेशन लिया गया है. देखिए हाइपोथेटिकल मैं कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 2, ये वाला इक्वेशन है इक्वेशन 2. इससे पहले का था इक्वेशन 1 which we discussed in last class. See, this is equation 1, as you can see in equation 1. So this is equation 1 and this is equation 2. This is equation 2. So equation 2 illustrates a hypothetical example of our function for gasoline demand. So 84.5 ये क्या है, इसको अभी के लिए इसको छोड़ते हैं. ये एक आप कांस्टेंट नंबर आप एज्यूम कर लीजिए. इसके बारे में बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे. इसको एक कांस्टेंट नंबर अभी आप इमेजिन कर लीजिए. माइनस हो रहा है पेट्रोल का प्राइस. पेट्रोल का प्राइस क्यों? पेट्रोल का प्राइस का फंक्शन उसके डिमांड के ऊपर, डिमांड के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है. पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेट्रोल का डिमांड घट जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है. अच्छा, अगर आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आपका पेट्रोलियम का डिमांड बढ़ जाएगा, राइट. और ये 2py क्या है? ये है आपका द एवरेज प्राइस ऑफ एन ऑटोमोबाइल. तो गाड़ी का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो पेट्रोलियम डिमांड का कम हो जाएगा, तो इसीलिए ये इन्वर्स है, इन्वर्स रिलेशन है. तो इसलिए ये है माइनस में, मतलब गाड़ी का दाम अगर बढ़ जाएगा तो आपका पेट्रोल का डिमांड घट जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव है. और अगर गाड़ी का दाम कम हो जाएगा तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा, राइट. इसीलिए इस इक्वेशन में ये नेगेटिव साइन में है. जो बढ़ने से जो आपका डायरेक्ट रिलेशन में है, ठीक है, जो कि इन्वर्स रिलेशन में नहीं है, डायरेक्ट आपका सिंपल डायरेक्ट रिलेशन में है, उसका साइन है पॉजिटिव. जिसका इन्वर्स रिलेशन है उसका साइन है नेगेटिव. चलिए, तो टू कंटिन्यू आवर एग्जाम्पल, सपोज द प्राइस ऑफ गैसोलीन इज 1.48 लीटर. ये अभी आप लोगों को बताया इनकम है हाउस होल्ड का 50,000 एंड प्राइस ऑफ एवरेज ऑटोमोबाइल इज 20,000. तो डिमांड फॉर गैसोलीन वुड बी 47.54 लीटर्स, कैलकुलेटेड एज फॉलोज. तो जैसा कि मैंने बोला, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल ये इक्वल टू, मतलब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये कांस्टेंट लेते हैं इसको. ये क्या है बाद में डिस्कस करेंगे. उससे माइनस कर रहे हैं 6.39. ये 6.39 क्या है? 6.39 यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग. ये भी एक आपका यहाँ पे कांस्टेंट है 6.39. हाइपोथेटिकल इक्वेशन है. 6.39 एक कांस्टेंट है इंटू px. px आपका वेरिएबल है. कौन सा वेरिएबल है? ये गैसोलीन का प्राइस है, प्लस 0.25 है. 0.25 क्या है इक्वेशन में? देखिए ये भी एक हाइपोथेटिकल कांस्टेंट यहाँ पे है, इंटू इनकम है. तो इनकम यहाँ पे कितना बोला गया है? 50,000, ठीक है. माइनस 2 क्या है? वही कांस्टेंट है इक्वेशन में 2. py क्या है? गाड़ी का दाम 20,000. तो यहाँ पे इक्वेशन में ये टोटल इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद सॉल्व करके आपका रिजल्ट आएगा कितना लीटर? 47.54 लीटर्स का. अब देखते हैं इसमें. रिकॉलिंग दैट इनकम एंड ऑटोमोबाइल प्राइसेस आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स. देखिए इसको, रिकॉलिंग दैट इनकम एंड ऑटोमोबाइल प्राइसेस आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स. हज़ार में इसको मेजर किया गया है. नोट दैट द साइन ऑन द ओन प्राइस वेरिएबल px इज नेगेटिव. जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पेट्रोलियम का दाम इसमें
किस में आपका डिनोट किया गया है, ओन प्राइस वेरिएबल नेगेटिव में है, मतलब माइनस 84.5 माइनस ये तो कांस्टेंट था और 1.48 था आपका Px मतलब प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, तो ये नेगेटिव में है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। दस एज द प्राइस ऑफ गैसोलीन राइजेस पर हाउस होल्ड कंजम्पशन वुड डिक्रीज बाई 6.39 लीटर्स। अब ये कांस्टेंट का मतलब क्या है समझ लीजिए। बोल रहा है कि ओन प्राइस वेरिएबल इज नेगेटिव दस एज द प्राइस ऑफ गैसोलीन राइजेस। अगर गैसोलीन का दाम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पर हाउस होल्ड का कंजम्पशन वुड डिक्रीज, हर एक हाउस होल्ड का कंजम्पशन कम हो जाएगा बाय 6.39 लीटर्स पर मंथ फॉर एवरी, ठीक है यहाँ तक लेते हैं 6.39 लीटर्स पर मंथ। तो अगर पेट्रोलियम का प्राइस एक यूनिट बढ़ जाता है तो उससे हाउस होल्ड का पेट्रोलियम कंजम्पशन 6.39 करके लीटर करके घट जाएगा। तो ये क्या है, ये है आपका एक कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट कि अगर पेट्रोलियम का दाम बढ़ता है एक यूनिट से तो कितना लीटर ऑफ पेट्रोलियम का कंजम्पशन कम हो जाएगा, 6.39 लीटर का पर मंथ कंजम्पशन कम हो जाएगा फॉर एवरी। आप ये कितना इंक्रीज का, एक यूनिट अभी मैंने बोला तो कितना बढ़ने से 6.39 लीटर का कंजम्पशन कम हो जाएगा, फॉर एवरी 1 यूरो इंक्रीज इन गैस प्राइस। तो 1.48 है आपका पेट्रोल का प्राइस, 1.48 पर लीटर यूरो आपका है पेट्रोलियम का प्राइस। एक लीटर पेट्रोल का दाम है 1.48। सो एज यू कैन सी 1.48 से बढ़ के इफ इट बिकम्स 1.48 से बढ़ के इफ इट बिकम्स 2.48 तो गैसोलीन का कंजम्पशन या पेट्रोलियम का कंजम्पशन कितना घट जाएगा भाई, 6.39 लीटर्स पर हाउस होल्ड, मतलब 1.48 रुपये यूरो पर लीटर अभी गैसोलीन का दाम है। अगर ये 2.48 बन जाएगा तो मैं एक हाउस होल्ड हूँ समझ लीजिए, तो मैं कितना पेट्रोल यूज़ करना कम कर दूंगा, 6.39 लीटर मैं पेट्रोल का यूज़ करना कंजम्पशन करना कम कर दूंगा। तो ये कांस्टेंट क्या है, किस लिए है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये जो बोला ना अभी इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन क्या कि प्राइस 1.48 से अगर बढ़ के 2.48 हो जाता है तो 2.48 अगर हो जाता है तो मैं अपना पेट्रोल का कंजम्पशन मंथली घटा दूंगा कितना, 6.39 लीटर, राइट। 1.48 से प्राइस अगर बढ़ के 2.48 हो जाता है तो मैं 6.39 लीटर का पेट्रोल का कंजम्पशन कम कर दूंगा। तो ये हो गया इन्वर्स रिलेशन, प्राइस बढ़ गया तो मेरा डिमांड घट जाएगा, यह है इन्वर्स रिलेशन, ऑपोजिट रिलेशन, राइट। और देखिए इनकम क्या क्या बोल रहा है, उससे पहले इसको थोड़ा और देख लेंगे डीपली। ओन प्राइस इज यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्कोर दैट द रेफरेंस इज टू द प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ। तो अपना प्राइस, ओन प्राइस इज यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट ओन प्राइस प्रोडक्ट का अपना प्राइस यूज करते हैं टू अंडरस्कोर दैट द रेफरेंस इज टू द प्राइस ऑफ अ गुड इटसेल्फ। ओन प्राइस का मतलब है कि उसी प्रोडक्ट का दाम, एंड नॉट द प्राइस ऑफ सम अदर गुड्स, किसी और प्रोडक्ट का नहीं। गैसोलीन के यहाँ पे ओन प्राइस मतलब गैसोलीन के प्राइस के बारे में ही बात हो रहा है। इन आवर एग्जाम्पल देयर आर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है हमारे एग्जाम्पल में, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। कौन कौन से है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये है जो कि चेंज हो सकते हैं, मतलब पेट्रोल का दाम चेंज हो सकता है, गैसोलीन का दाम चेंज हो सकता है, यह है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा इनकम है 50,000 रुपीज़, तो ये है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और 20 रुपये है, मतलब 20 यहाँ पे यूनिट दिखा रहा है कि है गाड़ी का दाम, 20 रुपये है गाड़ी का दाम सपोज। अब इसको 20 लाख ले लीजिए, मेरा इनकम है साल का 50 लाख, और ये आपका 1.48 पेट्रोल का दाम है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, मेरा यहाँ से तो इनकम घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है।
गाड़ी का दाम नीचे भी आ सकता है, फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट के चलते स्टॉक खाली करने के लिए डिस्काउंट भी दे सकता है और प्राइस आगे जाके बढ़ भी सकता है। पेट्रोल का दाम घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये अगर वेरिएबल है तो फिर कांस्टेंट कौन कौन से है? ये है कांस्टेंट 6.39 जो कि है आपका 1 यूरो प्राइस बढ़ने से कितना हम लोग कंजम्पशन घटा देंगे, कम कर देंगे 6.39 से। तो ये है क्या आपका कांस्टेंट वेरिएबल, ये है आपका कांस्टेंट, ये है आपका कांस्टेंट, ये है आपका कांस्टेंट। इसको और डिटेल में अभी समझेंगे। इन आवर एग्जाम्पल देखिए ये तो हो गया। अच्छा चलिए, इन आवर एग्जाम्पल देयर आर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द डिमांड फंक्शन एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो कौन सा है? इफ एनी वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस सो डज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे इस इक्वेशन में, डिमांड फंक्शन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि मैं बोल रहा था कि कांस्टेंट, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि बाकी चीज़ों के अप एंड डाउन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इफ एनी वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस सो डज द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर कोई भी एक इसमें से अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता है तो क्या होता है? चेंजेस सो डज क्वांटिटी डिमांडेड, तो फिर क्वांटिटी का डिमांड भी चेंज हो जाता है। इट इज़ ऑफन डिजायरेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट अ टाइम। सो व्हाट इज बीइंग सेड हियर कि इट इज़ ऑफन डिसाइडेबल, ये डिसाइडेबल है कि टू कॉन्सेंट्रेट हम लोग फोकस करें ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, कौन सा है अभी दिखा देंगे आपको। तो एक है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे जो लिखा है, और उसके साथ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर हम रिलेशनशिप देखेंगे तो वो अच्छा होगा समझने के लिए, राइट। इट इज़ ऑफन डिसाइडेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन the relationship between the dependent variable and just one of the independent variables at a time. To accomplish this goal, we can hold other independent variables constant and rewrite the equation. ये और थोड़ा तोड़ के easily समझाया जा रहा है नीचे के एग्जाम्पल्स में। तो ये बोला जा रहा है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एक है वो कौन सा है आप लोग जान गए होंगे, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, तो ठीक है उसमें भी जाएंगे। तो क्या बोल रहा है कि आपका इनकम कांस्टेंट रख देते हैं और ये गाड़ी का दाम भी अभी कांस्टेंट रख देते हैं। अभी के लिए सिर्फ पेट्रोल का प्राइस के ऊपर देखते हैं। गैसोलीन का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा? घट जाएगा, और अगर घट गया गैसोलीन का प्राइस तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा। इसी को बोल रहा है कि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर ही अभी काम करते हैं, समझने में आसानी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल टू कंसंट्रेट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स and its own price px, we hold constant the values of income and price of good y. For our example those values are 50 and 20 respectively. The equation would be written as, equation देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आपका px वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करने से क्या हो रहा है आपका, आप देख पा रहे होंगे, इसको सॉल्व करने से है आपका 57 माइनस 6.39 p, ये इक्वेशन आ रहा है। अब अगर p का वैल्यू 1.48 कर दे तो आप 6.39 इंटू 1.48 मल्टीप्लाई करके 57 से माइनस कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गैसोलीन इन लीटर्स। तो वो उतने लीटर का डिमांड आएगा। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। फिर 57 माइनस 6, चलिए 6.39 इंटू 1.48 जो कि पेट्रोल का प्राइस था, हम लोग ने अभी देखा गैसोलीन का, इक्वल टू इसका है उत्तर 47.54। इसको माइनस कीजिए 57 से, देन योर रिजल्ट इज 9.45। ये क्या है? लीटर है, इक्वल टू 9.45 लीटर। तो ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। द क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ गैसोलीन 6.39 पर लीटर। क्या बोल रहा है इसको देखिए, द क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ गैसोलीन 6.39 पर लीटर। ठीक से समझिए, द क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन डिमांडेड, जितना हम लोग गैसोलीन का डिमांड करते हैं वो फंक्शन है क्या, किसका, इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ गैसोलीन 6.39 पर लीटर का। यहाँ पे इस इक्वेशन में इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका प्राइस कितना होगा, 6.39 ही होगा। उसी बात को बोला जा रहा है। पर हाउस होल्ड इनकम 50,000 ले रहे हैं यहाँ पर, एंड एवरेज प्राइस ऑफ एन ऑटोमोबाइल 20,000। नोटिस दैट इनकम एंड प्राइस ऑफ द ऑटोमोबाइल्स आर नॉट इग्नोर्ड, दे आर सिंपली हेल्ड कांस्टेंट। इसको कैलकुलेशन से बाहर नहीं किया गया है, इसको कांस्टेंट रखा गया है। एंड दे आर कलेक्टेड इन द न्यू कांस्टेंट टर्म 57 into 84.5 plus 0.25 into 50 minus 2 into 20. Notice also that we can solve Px in terms of Q dx, quantity demanded of x, by rearranging the equation 3. Equation 3 मतलब ये वाला equation है, equation 3, which gives us equation 4. इसको solve करने से ये आपका equation आ रहा है, मतलब price of gasoline is equal to this minus this of quantity demanded. इसको थोड़ा मैथमेटिक्स से समझ रहे हैं ऐसे तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, some may face some difficulties because it is explained here in this way in equation form, expressing it by application of mathematical formulas, but actual में this is really easy and simple. चलिए, so equation 4 gives the price of gasoline as a function of the quantity of gasoline consumed per month. इक्वेशन 4 में दे रहा है क्या, गिव्स द प्राइस ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन का प्राइस है एक फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन कंज्यूम पर मंथ। पर मंथ जितना गैसोलीन कंज्यूम करते हैं तो गैसोलीन का प्राइस के साथ उसका फंक्शन है, वो तो सिंपल हम लोग सभी जानते हैं। एंड इज रेफर्ड टू एज द इन्वर्स डिमांड फंक्शन। इसको बोल रहे हैं इन्वर्स डिमांड फंक्शन। यही तो हम लोग इतने समय से पढ़ रहे थे कि प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा, प्राइस घट जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, वही बोल रहा है। Qx in equation 4 must be restricted to be less than or equal to 57, so the price is not negative. ये एक सिंपल चीज़ बोला है मैथमेटिक्स में, वो बोल रहा है कि Qx मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x, क्वांटिटी ऑफ x in equation 4 must be restricted to be less than or equal to 57. ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। वो कहाँ गया, इसको ठीक है, इसको इस आपका ग्राफ में समझाएंगे। ये देखिए, ये 57 कहाँ से आया, ये 57 था, ये इक्वेशन को सॉल्व करके ही आया था। तो Q dx इस टोटल इक्वेशन को, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो क्या हुआ कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x एक्चुअली व्हेन अदर वेरिएबल्स रिमेनिंग कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस, राइट। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ दिस कांस्टेंट माइनस दिस वेरिएबल, राइट। इसी 57 को कांस्टेंट रखने के मतलब बोला गया है इस इक्वेशन में कि आपका जो भी इसका रिजल्ट हो, उसका रिजल्ट मतलब ये लीटर 9.45 लीटर, ये कभी भी 57 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका इक्वल भी हो सकता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये 57 की जगह अगर ये 60 हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, मतलब ये बोला जा रहा है कि इस कांस्टेंट से आपका क्या होगा कि प्राइस फिर नेगेटिव हो जाएगा। टोटल प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता है। मतलब क्या आप पेट्रोल लेते हो पेट्रोल पंप से और आप पेट्रोल पंप को ही पैसा देते हो, यही तो होता है। पेट्रोल पंप वाला, पेट्रोल पंप का ओनर, मालिक, वो तो कभी आपको पेट्रोल लेने के पैसे नहीं देते हैं ना। आप
1 लीटर पेट्रोल लोगे पेट्रोल पंप से, तो पेट्रोल पंप को आप पैसा दोगे या पेट्रोल पंप का मालिक आपको आके पैसे देगा? पैसे देगा और आपका पेट्रोल भी देगा? वैसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये आपका 9.45 लीटर जो है ये कभी भी 57 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। मतलब आप पेट्रोलियम लेके जाओ बट आप कोई पैसे नहीं देना है, फ्री है, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है बट नेवर नेगेटिव नहीं हो सकता है। यही बात यहाँ पे बोला गया है, रिस्ट्रिक्टेड टू बी लेस देन और इक्वल टू 57। इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब लीटर जो था 9.45 वहाँ पे लिखा था वो इक्वल टू 57 भी हो सकता है, और तो और वो आपका इससे नीचे नहीं हो सकता। मतलब 57 है तो ये 58 नहीं हो सकता है। आपका क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल कभी भी 58 नहीं हो सकता है। सो दैट प्राइस इज नॉट नेगेटिव, जो बोला है प्राइस तो कभी भी किसी प्रोडक्ट का नेगेटिव हो नहीं सकता है ना। बट ऐसा सिचुएशन एक बार हुआ था, वो है आपका 2020 मई के टाइम में, मई के महीने में ऑलमोस्ट 17 और 18 को ये हुआ था कि पेट्रोल के प्राइसेस नेगेटिव में चले गए थे। ब्रेंट क्रूड का प्राइस नेगेटिव में चला गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पूरा दुनिया भर एकदम लॉकडाउन था और वहाँ पे प्रोडक्शन, पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन था उस टाइम पे हाई था। बट पेट्रोल का प्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है कि अगर आप ऑयल जो उसको क्या बोलते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ऐसा है कि तेल का जो कुआं है उसका प्रोसेस ऐसा है कि अगर आप ऑयल एक्सट्रैक्शन करना बंद कर दोगे तो उस प्रोसेस को री इनिशिएट करने में और ज़्यादा खर्चा आएगा, भयंकर खर्चा आता है। क्योंकि जो ऑयल का जो वेल होता है, मतलब तेल का जो कुआं होता है, उससे जो तेल को निकाला जाता है ना, तो वो अगर ऐसा है, ये सपोज ग्राउंड लेवल है, ये ब्लैक कलर का ग्राउंड है, इसके नीचे पेट्रोल मिलता है, इसके नीचे आप यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, मतलब आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो किसी भी ऑयल पिट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मशीन्स वगैरह सब कुछ लगाया, आप काम कर रहे हो। अब ये इस ऑयल एक्सट्रैक्शन के मशीन को अगर बंद कर दे तो क्या होगा, पेट्रोल का जो लेवल है, मतलब पेट्रोल सपोज जब आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आप ऑयल एक जगह पर तो लिक्विड फॉर्म में तो रिजर्व नहीं रहेगा ना। तो सपोज यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब अगर आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना बंद कर दोगे तब क्या होगा, तब सिंपली ये होगा कि ऑयल का लेवल नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम होगा, पहले आपको इस लेवल पर पेट्रोल मिल रहा था, अब आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक सेकेंड, अरे बाप रे 400% हो गया। हाँ, तो इस बार आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस लेवल तक जाना पड़ेगा, मतलब इतना ये जो गैप हो जाएगा, तो इसके कारण आपका ऑयल का एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इससे तो बेहतर यही था उस टाइम पे कि भाई ऑयल एक्सट्रैक्ट करते रहे, जितना आएगा उसको स्टॉक जितना हो सके करते रहे, नहीं तो फेंक दे, कुछ ना कुछ करे। बट मशीन को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बंद कर दिया तो उससे दोबारा चालू करके ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में जितना नुकसान होगा, उससे बेहतर यह है कि ऑयल फेंक दे, जितना हो सके उतना रिजर्व तो कर ले बट ऑयल फेंक दे, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था इंस्टेड कि हम लोग मशीन को बंद कर दे, क्योंकि उसमें फिर आपका री इनिशिएट करने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ऑयल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जमा हो गया था, स्टॉक हो गया था, तो क्या हुआ, ऑयल का प्राइस नेगेटिव में चला गया था। पेट्रोल पंप में नहीं आया था तब, बट वो ऑयल के फ्यूचर्स वगैरह वो सब होते हैं। जब हम लोग कमोडिटीज़ मार्केट को पढ़ेंगे तो इस पेट्रोलियम एंड अदर प्रोडक्ट्स के भी, अदर कमोडिटीज़ के प्राइस को एक्चुअली समझेंगे, प्राइस एनालिसिस करेंगे उसको बाद में जाके। वो बहुत एडवांस लेवल का एनालिसिस होता है, तो जनरली उसको कवर करने का स्कोप इज़ वेरी लेस, बट स्टिल वी विल ट्राई टू कवर दोज थिंग्स एज वेल, बिकॉज दोज आर लाइक मोस्ट हाई-फाई कॉन्सेप्ट्स, तो वी विल बी गेटिंग इनटू दोज स्टाफ लेटर ऑन। तो वैसा हो गया था, जिसके चलते कि पेट्रोल का प्राइस नेगेटिव भी चला गया था। एक्चुअली ब्रेंट क्रूड का प्राइस नेगेटिव गया था आपका, नॉट द रियल, मैंने नॉट द पेट्रोल इन योर पेट्रोल पंप्स। पेट्रोल पंप में तो कभी कम हुआ ही नहीं, उल्टा बढ़ गया प्राइस। उस टाइम पे भी हाई था, ऑलमोस्ट 65-70 उस लेवल पे उस टाइम पे भी पेट्रोल आपका डीजल मिल रहा था, और पेट्रोल ऑलमोस्ट लाइक 75 था और डीजल आई थिंक 65 तक आया था, एकदम नीचे आया था। बट ठीक है, टैक्स कलेक्शन भी तो करना होता है ना, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा वैसा तो नहीं होता है।
आपको वैक्सीन भी फ्री में चाहिए, हेल्थ केयर भी फ्री में चाहिए, सब फ्री में चाहिए, आपको राशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। वैसा तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो टैक्स लगाना पड़ेगा। तो पेट्रोल को हथियार बनाया कि पेट्रोल से ही टैक्स वसूल करेंगे, तो किया गया। इसमें गलत भी कुछ नहीं है, बट हाँ अभी जैसे कि 100 के आसपास चला गया, एंड ये दुनिया भर में ही ऐसा है, पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा सेम है। ऑयल बॉन्ड का आप लोगों ने सुना होगा कि 2008-7-8 के पास टाइम पे, उस टाइम के जो गवर्नमेंट थे, उन गवर्नमेंट ने, सरकार ने ऑयल बॉन्ड लिया था, क्योंकि उस टाइम पे भी तेल के दाम ज़्यादा हो गए थे, तो उसको कम दाम में इंडिया में बेचने के लिए तो ऑयल बॉन्ड खरीदा गया था। उसका भी इंटरेस्ट है, पे करना पड़ रहा है, ठीक है। रीपेमेंट चल रहा है ऑयल बॉन्ड का, मैं जानता हूँ। उसका तो रीपेमेंट जस्ट चालू है, आई थिंक 2019 से आई थिंक चालू है ऑयल बॉन्ड के ऊपर जो पेमेंट करना, तो उसके चलते भी थोड़ा प्रेशर आता है। बट ठीक है, अब हर एक चीज़ को तो आपको नहीं दे सकते ना, सब कुछ थाली में परोस के दे देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो ठीक है, चल रहा है, बट हाँ कंज्यूमर को तो प्रेशर हो ही रहा है, ये बात तो सच है। एनीवेज देखते हैं अब आगे क्या होता है। एनीवेज तो इस चीज़ को अब समझते हैं। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, राइट। सो द प्राइस इज नॉट नेगेटिव। अब देखिए, नाउ टेक अ लुक ऑन दिस, द ग्राफ ऑफ द इनवर्स डिमांड फंक्शन इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट, द ग्राफ ऑफ द इनवर्स डिमांड फंक्शन। इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या है? प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का ऑफ पेट्रोल। यह इनवर्स डिमांड फंक्शन इज कॉल्ड डिमांड कर्व एंड इज शोन in exhibit 1. So household demand curve for gasoline, just look at it. So this is qx liters per month, and quantity of x, quantity of gasoline in liters per month, price of gasoline in euro per liter, माने पर लीटर गैसोलीन का प्राइस क्या है, और ये आपका पर मंथ गैसोलीन का क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कंजम्पशन कितना है। Let us take a look on this. Look at it. 8.92 and 57 is written there. 8.92 and 57. So what are those figures? Let us find out. 8.92. See, PX, price of gasoline, is equal to 8.92 is one constant. Now what the hell is this 8.92? Let us find out what is this 8.92. 8.92 is Px, maximum Px. This is Px, means price per liter. मैक्सिमम तेल का, गैसोलीन का प्राइस क्या है? 8.92, और मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांडेड क्या है गैसोलीन का? 57। इसमें, इसी कर्व में अब हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे जाने की कोशिश करेंगे। सो एज आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ 2.48 एंड 1.48 ऑफ प्राइस ऑफ गैसोलीन, तो क्या बोल रहा है कि गैसोलीन का प्राइस अगर 1.48 होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा? यू कैन सी इट राइट इन दिस कर्व। 1.48 अगर आपका गैसोलीन का प्राइस है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड होगा 47.54 लीटर्स का, राइट। और अगर आपके गैसोलीन का प्राइस बढ़ जाता है 1 यूरो से, एंड अगर गैसोलीन का प्राइस बढ़ के 2.48 हो जाता है तो डिमांड कितना होगा? 41.15 लीटर्स का, ठीक है। तो मैक्सिमम, और ये 57 एंड 8.92, ये इसका लॉजिक क्या है? ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपली ये है कि मैक्सिमम अगर प्राइस 0 हो जाता है, देखिए इसका पॉइंट तो 0 है ना, मतलब ये टोटली देखिए हाइपोथेटिकल है, इसको प्रैक्टिकली समझना और इंटरेस्टिंग होता है, बट क्या करें, जैसा है वैसा तो पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। इसका बेस है 0 का, देखिए ये है आपका 0, ठीक है, ये 0 है, 0 पॉइंट है एकदम। यहाँ पे प्राइस भी 0 है और क्वांटिटी डिमांडेड भी 0 है, सिंपल। प्राइस भी 0 है, क्वांटिटी डिमांडेड भी 0 है, मतलब कुछ चालू हुआ ही नहीं। अब एक सिंपल बात बोलिए, प्राइस अगर 0 होगा, प्राइस तो इस एक्सिस में है ना, इस एक्सिस में आपका प्राइस है, इस एक्सिस में आपका क्वांटिटी डिमांडेड है लीटर्स पर मंथ, तो ये क्वांटिटी QX क्वांटिटी डिमांडेड पर मंथ है। प्राइस अगर 0 है, मैक्सिमम डिमांड कितना हो सकता है? बोला गया है कि 57 लीटर्स का डिमांड मैक्सिमम हो सकता है पर मंथ का,
अगर प्राइस 0 भी हो जाए तब मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांडेड हो सकता है 57 लीटर्स का। और अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ के अगर मैक्सिमम 8.92 हो जाए यूरो हो जाए तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो सकता है 0। 8.92 के प्राइस पर कोई भी पेट्रोल नहीं खरीदेगा और 57 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर फ्री में भी मिल जाए तो भी, फ्री में मतलब 0 में भी मिल जाए तो भी नहीं खरीदेंगे। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। अब अगर आप सोचिए कि प्राइस थोड़ा 1.48 से घट के अगर 0.48 हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये कर्व यहाँ से आप एक ग्राफ बना सकते हो। तो ये यहाँ पे बढ़ के 57 है तो ये सपोज 53 हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर 2.48 है, अगर ये 3.48 हो जाए तो इसका क्वांटिटी डिमांडेड घट के कहाँ आ जाएगा 35 में सपोज आ जाएगा। अब ये एक्चुअल में कितना आएगा, ये वो जो इक्वेशन है उसमें आपका वैल्यू पुट करके इंक्लूड करके आप उसका वैल्यू निकल सकते हो। बट ये एक मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन आपका कहीं भी नहीं आएगा। मतलब CFA के एग्जाम में भी शायद कैलकुलेशंस आते नहीं होंगे, इसका आते भी होंगे तो ठीक है, वो तो जो लोग CFA पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अदरवाइज और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो शायद आप लोग तो जानते ही हैं सब कुछ। शायद ये भी आप लोगों के एग्जाम में शायद आता नहीं होगा कि ऐसे प्राइस कैलकुलेट करो, ऐसा तो शायद आता नहीं होगा। एनीवेज, तो उसमें बड़ी बात नहीं है। वो हम लोगों का प्राइस कैलकुलेशन तो वो करना कोई इंपॉर्टेंट बात है ही नहीं, उसमें सिर्फ आपका एक सिंप्लीफिकेशन करना होता है, तो उसको छोड़ते हैं अभी। तो ये हाइपोथेटिकल मैंने सिचुएशंस बताए। अब थोड़ा और आगे जाते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड लिटिल बिट। चलिए, इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तो इसको एकदम कवर कर देते हैं। चलिए, तो क्या कहा गया है कि द डिमांड कर्व, ये क्या है डिमांड कर्व, इसको बोला जाता है डिमांड कर्व। ठीक है, इस चीज़ को, ये जो कर्व है, ये कर्व को बोला जाता है डिमांड कर्व। अब कर्व का है, आप बोलोगे कि ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऐसे लेते हैं इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि इसको बोला जाता है डिमांड कर्व। एक्चुअल में इसको डिमांड कर्व भी बोला जाता है, अभी के लिए नहीं। मतलब देखिए, हाउस होल्ड डिमांड कर्व फॉर गैसोलीन, ये तो CFA इंस्टीट्यूट का है, आप लोग देख रहे होंगे। CFA 22 L1 वॉल्यूम 2 2022 का है। तो ये तो इंस्टीट्यूट का है, कोई बात नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये एकदम मतलब सुपर नॉलेजेबल जो लोग होते हैं उन्हीं लोगों ने इस करिकुलम का डिज़ाइन किया है। एंड CFA इज़ मतलब वर्ल्ड का मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, डिग्री है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। सो दे हैव सेड इट कि दिस इज अ डिमांड कर्व। So those who are from engineering background or any other background who doesn't have any idea about the economics, don't worry, this won't be like that much useful, but the interpretation of this demand curve is going to be really important in your life. इसका ये इक्वेशन आपको याद रहे या ना रहे, इट डजेंट मैटर, बट इसका जो एक्चुअल में जो होता है, इस कर्व का जो ऊपर नीचे आगे पीछे जो होता रहता है वही काम का है, तो उसको ही हम लोग सीखना चाहते हैं। चलिए, सो द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट क्वांटिटी विलिंगली परचेस्ड एट ईच प्राइस। चलिए, वो मैं जो कुछ समझा है वो इधर ही लिखा है और कुछ भी अलग से लिखा नहीं है। चलिए फिर भी लेट अस गो थ्रू इट कि टीचर लोगों ने क्या कहा है। सी व्हाट इज रिटन हियर इज द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स the highest quantity willingly purchased at each price as well as the highest price willingly paid for each quantity। तो इस डिमांड कर्व में क्या रिप्रेजेंट किया गया है कि द हाईएस्ट क्वांटिटी willingly demanded मैंने willingly purchased at each price 2.48 1.48 0.48 0 3.48। तो बोला है कि द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट क्वांटिटी willingly purchased। अब आपने कहा कि भाई 0 प्राइस है, हम लोग 57 लीटर्स क्यों खरीदेंगे, हम उससे ज़्यादा खरीदेंगे। बट आप खरीद के करोगे क्या, यू हैव ओनली वन कार एंड सपोज यू ड्राइव दैट कार अ लॉट, सपोज यू हैव टू गो टू ऑफिस, ठीक है, नाउ पेट्रोलियम इज फ्री, नाउ यू गाइज आर गोइंग ऑन अ माने लॉन्ग रोड ट्रिप, राइट।
आपको सपोज बॉम्बे से गोवा जाना है, सो यू आर जस्ट यूज टू गो बाई ट्रेन, नाउ यू आर गोइंग बाई कार। लोनावला बोल के कोई जगह है, मैंने कभी गया नहीं हूँ बट सुना है, उधर जाना है, यू आर गोइंग देयर बाई कार। यू लिव इन साउथ इंडिया, सपोज मैंने कभी गया नहीं है, ऊटी बोल के एक जगह है कोयम्बतूर से आपका 100 किलोमीटर्स अवे। So yeah, if you want to go there from Coimbatore to Ooty, it's 100 kilometers. You used to go by bus. Now you are driving by yourself, right? In Kolkata, Kolkata to it is one place is called Gangtok. It is in Sikkim. So yeah, it's almost like 570 kilometers till Siliguri and almost 120 kilometers to Sikkim. So people there generally go by train, and then they take cabs like Tata Sumo or other private cabs or even shared Tata Sumo or SUVs. They go there by that route. तो उसको they are thinking कि चलो भाई price has become zero. Just a minute. तो let us drive our own car. अपने खुद के ही गाड़ी से जाएंगे भाई, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाएंगे, थोड़ा रोमांच करेंगे, मतलब एक्साइटमेंट, थोड़ा एक्साइटिंग करेंगे, तूफानी करेंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं तो भाई ड्राइव करके 500-600 किलोमीटर जाएंगे, इट्स ओके। इवन इफ यू ड्राइव 31 days इन अ मंथ, 24 hours, उतना तो गाड़ी चल ही नहीं सकता है, गाड़ी फिर आपका खराब हो जाएगा, है ना। तो प्राइस जीरो भी हो जाए, आपका फ्री में भी पेट्रोल मिले, उसका भी एक मैक्सिमम कंजम्पशन का लिमिट है 57, और प्राइस का भी लिमिट है। देखिए प्राइस एकदम ऊपर चला गया, सबसे टॉप में चला गया, ठीक है, तब कोई इतना टॉप में चला गया कि कोई डिमांड कर ही नहीं रहा है। बोला कि भाई जैसा कि होता है, सपोज पेट्रोल का भी प्राइस है 100 रुपये, सपोज 500 रुपये हो गया, खरीदोगे? बहुत इमरजेंसी सर्विस है, एम्बुलेंस, तब शायद चल सकता है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक बात समझ लीजिए, ये हाइपोथेटिकल है, ये आपका लॉजिकल रियल लाइफ नहीं है। लॉजिकल रियल लाइफ को ऐसे आप यहाँ पे एक ग्राफ बना के, ऐसे डिमांड कर्व बना के आप कभी भी यू कैन नॉट प्लॉट इट ओवर हियर, इट इज इम्पॉसिबल। सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, राइट? वी जस्ट डिस्कस इट जस्ट समटाइम्स बिफोर कि वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस, वट एवर द थिंग्स वी हैव कंसिडर्ड, इट इज जस्ट हाइपोथेटिकल, otherwise it cannot be theory, right? Theory is based on hypothesis, but the practical is completely different. माने it can be anything, right? Practical का कोई आप ऐसे एक पेन और पेपर लेके you cannot just put it on papers कि this is practical, it is impossible. And actually theory has come from practical thing. Theory से कभी practical नहीं हुआ है, it has never happened कि you made a theory and that it became practical. No. In case of even astrophysics or any what many things are there like molecular physics and whatever, the greatest level of physics, actually there is actual natural phenomena, and from that people arrive to one theory, there is black hole. So black hole is the real thing na. So for that black hole they have some mathematics, they have some theorems, they have Ramanujan, he came up with the formula for black hole, any mathematical backbone for black hole. So their black hole has been existed since billions of years, right? तो वो एक्चुअल फैक्ट है, वो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस जो एक्चुअल रियलिटी है, रियलिटी से आपका थ्योरी बन सकता है। आप रियलिटी को देख के आप कुछ अपना थ्योरी दे सकते हो, बट आप कोई थ्योरी दे दिए एंड उससे रियलिटी क्रिएट हो जाएगा, वैसा इम्पॉसिबल है। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ना कि प्रैक्टिकल। 100% प्रैक्टिकल सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है बट हाइपोथेटिकल है। अभी 500 हो जाएगा, तब क्या पेट्रोल का अभी 100 रुपये चल रहा है, 500 हो जाएगा, आप क्या पेट्रोल खरीदना बंद कर दोगे? इम्पॉसिबल, पेट्रोल का कंजम्पशन अभी कम नहीं होगा जब तक क्या 100% उसका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि एम्बुलेंस तो चाहिए ही, एम्बुलेंस तो चलाना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर आपका इमरजेंसी रेलवे सर्विस, उसमें तब का डीजल का इंजन होता है तो उसको तो चलाना ही पड़ेगा। तो ऐसे बहुत इमरजेंसी चीज़ों को तो चलाना ही पड़ेगा। तो एब्सोल्युटली डिमांड जीरो कभी भी नहीं हो सकता है, प्राइस चाहे जो भी हो, और प्राइस चाहे जीरो हो भी जाए तब 57 में ही आपका जो कंजम्पशन रुक जाएगा, वैसा नहीं है। तो
दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल, इसको उतना सीरियसली लेना नहीं है। मेन इसके पीछे के भावनाओं को, कॉन्सेप्ट को समझना है, दैट इज ऑल। वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी थियोरी टू गेट अ नोबेल प्राइज। अगर आपको नोबेल प्राइज लाना है ठीक है, तो कोई आप देखिए एक बहुत ही वी एक्चुअली हैव टू इकोनॉमिस्ट हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज, राइट? वन इज Amartya Sen, another person is Abhijit Vinayak Bandyopadhyay, and both are from West Bengal. So both of them are, genius, right? They are legends, but they are not a stock market investor, right? They are genius in their field, no doubt. They are like, worship worthy. What they have done, what they know, it's huge, but still they are not a successful investor in the share market. So why we should even be bothered, right? We are going to learn how to become a successful investor, how to become a successful analyst, equity analyst, or an investment banker. So for that you definitely need the knowledge of economics, but उतना भी नहीं चाहिए कि आप you will become an economist and you will like get a Nobel Prize. If you get that, is huge. Actually we have many candidates who are like masters in economics, and they are doing very good from huge great colleges. If you like do PhD and then if you someday come up with one theory and you get the Nobel Prize, I will be like very happy to call myself कि yes, I have worked with you. So it would be really, I will feel honored कि मेरे को आपके साथ काम करने का मौका मिला था कभी इस टाइम पर। तो ठीक है, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस जस्ट लेट अस लुक एट इट नाउ एज इट इज। जितना प्रैक्टिकल हो सकता है उतना ही देखते हैं, चलिए। So the demand curve represents highest quantity willingly purchased at each price as well as the highest price willingly paid for each quantity. ये आप लोग समझ गए। In this example, this household would be willingly purchase. Okay, yeah. In this example, this household would be willing to purchase 47.54 liters of gasoline per month at a price of 1.48, वो हम लोगों ने देख लिया है। और if price were to rise to 2.48 per liter, the household would willingly purchase only 41.15 liters per month. ये यहाँ पे देख रहे हो आप, 41.15 liters per month, 47.54 liters per month at a price 1.48, 2.48. You guys have seen it. So this demand curve is drawn with price on the vertical axis. Price on vertical axis. This is price C per liter px, प्राइस ऑफ गैसोलीन। वर्टिकल एक्सिस ये हो गया आपका वर्टिकल बोलते हैं, और इसको आपका हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। देखिए, दिस डिमांड कर्व इज ड्रॉन विथ प्राइस ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप लोगों ने देखा है अभी। सो इट कैन बी करेक्टली इंटरप्रेटेड एज स्पेसिफाइंग ईदर द हाइएस्ट क्वांटिटी अ हाउसहोल्ड वुड बाय, हाइएस्ट क्वांटिटी जो कि हाउसहोल्ड खरीद सकता है, दैट इज हियर था इट वाज 57 एंड हियर इट वाज 8.92, राइट? तो it can be correctly interpreted as specifying either the highest quantity a household would buy at a given price or the highest price it would be willing to pay for a given quantity. अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन, लेट अस लुक एट इट वंस अगेन। इसका इंटरप्रिटेशन, दिस इज एक्चुअली हाईएस्ट प्राइस a customer is willing to pay. इसका हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, बट डिमांड उसमें आपका जीरो दिखा रहा है, राइट? हाइपोथेटिकल है तो उतना दिमाग अभी यहाँ पे लगाना नहीं है। हाईएस्ट प्राइस इट वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ गिवन क्वांटिटी। इन आवर एग्जांपल द प्राइस of 1.48 per liter, households would each be willing to buy 47.54 liters per month. Alternatively, the highest price they willing to pay is 47.54 liters per month is 1.48 per liter. See example पे हम लोगों ने देखा है, if the price were to rise by 1, a household would reduce their quantity by 6.39 units. ये हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था to 41.15 लीटर्स, जो कि 2.48 प्राइस होगा, तो ये इतना लीटर का डिमांड होगा। द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज मेजर्ड एज द चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, Q ब्रैकेट डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, where delta stands for the change in
In this case, the slope of the demand curve is 1 divided by minus 6.39 or minus 0.156. इसको समझते हैं. This is a very small thing, but yeah, just later have a look at this. For the slope of the demand curve, so this is referred to as the slope. देखिए slope ही है. यहाँ पे अगर सोचिए कि ये एक पहाड़ी का रास्ता है. This is a mountain road. So if your car is here and if your foot is not on the brake pedal, so the car will just slide down through this slope, right? इस स्लोप पर अगर आपका गाड़ी रखा हुआ है एंड उस पर आप ब्रेक प्रेस करके नहीं रखोगे तो ये गाड़ी अपने आप इस ढलान पर, स्लोप मतलब क्या, ढलान पर ये नीचे आ जाएगा, राइट? और ऊपर जाने में बहुत दम लगाना पड़ेगा, राइट? इसी को बोल रहा है. तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, समझे क्या? द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज मेजर्ड. इसको माप किया जाता है, इस स्लोप को, इस ढलान को माप किया जाता है एज द चेंज इन प्राइस. प्राइस में जितना चेंज होता है डिवाइडेड बाई चेंजेस इन क्वांटिटी. तो ये तो डिमांड कर्व है. अब डिमांड किस में होता है, मतलब क्वांटिटी में डिमांड होता है, राइट? कि हमें 1 लीटर पेट्रोल दीजिए, ठीक है. अब कोई अगर जाके बोले कि 100 रुपये का पेट्रोल डाल दो स्कूटी में या आपके बाइक में, तो 100 रुपये का पेट्रोल जो आप डिमांड कर रहे हो, तो आपका तो एक्चुअली क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो ना. 100 रुपये आप दोगे, देने के लिए राजी हो, बट उसमें आपका 1 लीटर मिले कि 1 लीटर 100 ग्राम्स मिले, तो वो तो आप चाह रहे हो क्वांटिटी ही, राइट? तो इसीलिए बोला है कि क्वांटिटी. देखिए फिर से इसको देखिए अच्छे से. द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज मेजर्ड एज अ चेंज इन प्राइस. मेजर्ड एज द चेंज इन प्राइस. पी प्राइस है, पी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, सो पी बाय क्यू. एंड चेंज एज इट इज सेड चेंज, सो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, सो डेल्टा. दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा. दिस साइन इज कॉल्ड एज डेल्टा. Delta P माने change in price divided by changes in quantity. See, delta stands for the change. In this case, the slope of the demand curve is 1 divided by minus 0.39, or the calculation is this. Now, how come we have arrived to this number, right? This may be your question. Okay, let us go through it. Let us go to the example. इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2.48 एंड 1.48? तो दिस इज द प्राइस स्केल, राइट? दिस इज द प्राइस स्केल एंड दिस इज द क्वांटिटी. सो चेंज इन प्राइस कितना हुआ? 2.48 माइनस 1.48. व्हाट शुड बी द रिजल्ट? इट शुड बी इक्वल टू 1, राइट? तो चेंज इन प्राइस, चलिए इट्स ऑल राइट. चेंज इन प्राइस इक्वल टू what was said, delta is the symbol for change. अब how they have denoted this change in price is that delta P by delta Q, right? So delta P upon delta Q. Now what is this change in P by change in Q? What is this change in P by change in Q? Change in price, this is 1. Change in price and change in Q. What is the change in Q? That is 47.54. So you can just calculate it on your calculator. 47.54 minus 41.15. So what is the change? 6.39. 6.39. So now tell me one thing, this change in quantity, whether it is in positive or negative. This is in negative.
this is negative, and this is 1, this is change in price, it was positive, right? So the price has increased, so plus 1 divided by minus 6.39. So if you just do equal to, and don't just listen to me, don't just believe me, you just try to make the calculation on your calculator as well, right? So you just input in your calculator positive 1 divided by 6.39 minus 6.39. So the answer you will find is minus 0.156 minus 0.156, right? इसको याद रखिए, just remember this, minus 0.156. Let us check the answer. C, minus 0.156 is the answer. So now, are you guys understanding what is this written here? I have showed it to you. So this is the slope of the demand curve. So this is called as, what is this that we were calculating for so long? It is the measurement of slope of demand curve. You measured the slope, this slope, ढलान of demand curve. ये ढलान कितना है, कितना स्टीप है, कैसा है? तो ये है आपका ऐसा है. ये आपका आंसर माइनस 0.156 कैसे आया? ऐसे आया. इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. मतलब ये कितना स्लोप है, कितना स्लोप है, इसका कैलकुलेशन किया इस चेंज के ऊपर. 1 रुपया प्राइस चेंज हुआ, बढ़ गया या घट गया, तो उससे आपका कितना चेंजेस आया, इतना चेंजेस आया, मतलब स्लोप इतना आया, कितना चेंजेस आया. इसका ये जो डिफरेंस निकाला हम लोगों ने 6.39. अब यू कैन जस्ट मेक इट इन पॉजिटिव, माने फ्रॉम 1.48, या सो हियर एक्चुअली 1.48 से आपका इट बिकेम 2.48, राइट. तो पॉजिटिव प्राइस चेंज हुआ, मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ, सो पॉजिटिव प्राइस एंड क्वांटिटी इससे इसके वजह से घट गया, शिफ्ट हो गया इस तरफ, तो उसकी वजह से आपका नेगेटिव प्राइस यहाँ पे क्वांटिटी घट गया, डिमांड का क्वांटिटी डिमांडेड हैज डिक्रीज, सो दिस इज इन नेगेटिव. सो सपोज इफ द प्राइस goes down to 0.48, you can calculate it at home. So in that case it will be minus 1. So here if the price comes down from 1.48 to 0.48, in that case it will be minus 1 divided by plus 6.39. How come I know कि it is going to be 6.39? Because this is one constant I said na. This is a constant. See, this is a constant 6.39. Now what constant we heard of it? What is the constant? Constant. This is constant. 6.39 is constant, right? This constant we are talking about. इसी constant के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे. चलिए, हाँ, so just थोड़ा सा इतना और कवर कर लेते हैं इस वीडियो में. So the general model of demand and supply can be highly useful in understanding directional changes in price and quantities that result from shifts in one curve or the other. तो क्या बोल रहा है कि तो जनरल मॉडल, ये जो साधारण एक जनरल मॉडल है ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कैन बी हाईली यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट डायरेक्शनल चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटीज. ओके, डायरेक्शनल चेंजेस मतलब प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी घट जाएगा, आपका प्राइस घट गया तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा. इसका जो डायरेक्शनल चेंजेस है इसको समझने में हेल्प करेगा. ठीक है, द जनरल मॉडल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई का अगर आप मॉडल को स्टडी करोगे तो वो आपका प्राइस एंड क्वांटिटीज का अप्स एंड डाउन्स को समझने में हेल्प करेगा. द रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट्स इन वन कर्व और द अदर. यही बात बोला गया है. अच्छा, ऑफन दो वी नीड टू मेजर हाउ सेंसिटिव क्वांटिटी डिमांडेड और supplied is to changes in the independent variables that affect from them. तो क्या बोल रहे हैं कि often दो प्राइस से ही हम लोग क्या करते हैं कि we need to measure, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हाउ सेंसिटिव, कितना सेंसिटिव है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी का जो डिमांड है वो कितना सेंसिटिव है, और सप्लाई भी क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाईज टू द चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स?
प्राइस, वो आपका इक्वेशन देखते हैं. लेट्स लुक एट द इक्वेशन. ये है इक्वेशन. चलिए इस इक्वेशन को देखते हैं. पी एक्स इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. तो पी एक्स अगर चेंज होगा तो आपका तो क्वांटिटी डिमांडेड मतलब प्राइस ऑफ गैसोलीन इफ इट चेंजेस ना, तो देन तो आपका पूरा गेम चेंज हो जाता है, राइट. यही यहाँ पे बोल रहा है, नथिंग एल्स. जस्ट लुक एट इट व्हाट इट इज सेड हियर. ऑफन दो वी नीड टू मेजर हाउ सेंसिटिव क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड इज. क्वांटिटी जो डिमांडेड होता है और क्वांटिटी जो सप्लाइड होता है, मतलब कोई सप्लाइड होता है, कोई डिमांड करने वाला तो होता है ना. अगर हम लोग पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? इंडियन ऑयल, BPCL, IOCL, HPCL या रिलायंस के पेट्रोल पंप पर जाते हैं. तो सप्लाइड तो वही है. तो क्वांटिटी सप्लाइड बाई these oil marketing companies and quantity demanded by consumers like us. It is being said right here, right? So we need to measure how sensitive quantity demanded or supplies is to changes in independent variables that affect him. अब कौन सा चीज़ है जो कि अफेक्ट करता है? पेट्रोल का प्राइस अफेक्ट करता है, राइट. पेट्रोल का प्राइस अफेक्ट करता है कि हम लोग कितना डिमांड करेंगे, और पेट्रोल का प्राइस ये भी इस चीज़ को भी अफेक्ट करता है कि कितना सप्लाई मार्केट में होगा, राइट. कितना सप्लाई मार्केट में होगा ये भी डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, और कितना डिमांड हम लोग मार्केट में करेंगे ये भी डिपेंड करता है आपका प्राइस के ऊपर. अभी ये सप्लाई साइड में हम लोग अभी जाएंगे नहीं. जब सप्लाई साइड में जाएंगे तब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. सो लाइक इट विल बी देन व्हेन वी कंबाइन डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर ना, देन इट विल बी लाइक डैम इंटरेस्टिंग. सो जस्ट वेट फॉर इट फॉर सम टाइम. In our next session or maybe session after the next session, we will be like going completely practical with this stuff. So this is the concept of elasticity. This is the concept of elasticity of demand and elasticity of supply. तो elasticity of demand आप लोग जानते हैं, राइट, कि प्राइस चेंज होने पर कितना आपका डिमांड चेंज होता है, कितना अप डाउन होता है. अभी इतना समझ लीजिए, इसका बाद में पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, ठीक है. अभी ये जस्ट सिर्फ आप टर्म को समझ लीजिए, जस्ट याद रखिए. फंडामेंटली all elasticities are calculated in the same way. They are ratios of percentage changes. We just calculated this. अच्छा, let us begin with the sensitivity of quantity demanded to changes in own price. अपने प्राइस पर चेंज होने, अपना प्राइस चेंज होने पर क्या सेंसिटिविटी होता है, क्या होता है, वो सब अभी देखेंगे. चलिए तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक. So we can do one thing. We will make a separate video on this particular thing, price elasticity of demand. Watch the next video to understand what is price elasticity of demand in depth. Okay, see you in the next video. Namaskar.